तो नहीं कर पाए. So I changed my optional in 24. इस attempt में I switched to anthropology. शुरू में physics लिया था मैंने एग्जाम हॉल में कि या तो यूपीएससी छोड़ो या ऑप्शनल छोड़ो. तो क्या स्कोर था पिछली बार फिजिक्स में? अरे सर यहाँ कैमरा में it was very low. मतलब I missed the cut off for mains by over 200 marks. It was disastrous. प्रीलिम्स जितने नंबर थे क्या? हो सकते हैं. Caution for everyone who was listening to this and preparing for UPSC. Go for standard materials as far as possible and find good mentors. Sir, always. Hello and welcome to the Study IQ IAS. Today we have with us a very chilled out topper, Kanishk, who has secured rank 380. And chilled out because he is pretty happy. He has been really easy in his preparation in the initial years. But in this year, he has actually worked really hard to crack this examination. So we are going to get insights into the journey of Kanishk in cracking this civil service examination. Congratulations so much, Kanishk. Thank you so much, sir. Thank you. Great achievement, I think. And I have a few questions for you. One is, it took you 4 attempts to qualify this examination. And you yourself were saying that the biggest fear that you have is the prelims examination because now you are also going to attempt it once again. And still you feel that sir, prelims is something that is scary for you. So why is it so? So because prelims is the most unpredictable part of this examination. The syllabus is very vast. The questions are unpredictable. And everything hinges on those 2 hours. If my brain is working correctly, if it is aligned with that of the demand of the questions or not. It depends on the set which I am allotted. If I find a set which does not allow me to really run my mind in the initial 20-30 questions, then the entire paper may go to 40 question. So, for example, in 24, the set which I was allotted, I think it started with economy or something. And I really had to apply my mind. So that set my tempo going. And as the paper progressed, I got into my flow. And some of my friends got a set in which the initial questions were easy. And their momentum got disrupted midway through the paper. So all of these are obviously a lot of personal experiences, subjectiveness. Maybe I don't possess enough knowledge of the prelims, but prelims is very scary for me even now. तो ये चीज़ क्या पहले टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, करना भी चाहिए, तभी ये यूपीसी सम पीपल आर वेरी गुड एट प्रीलिम्स, उनको यूपीसी की डिमांड समझ में आती है. मैं उनमें से नहीं हूँ. मैं बोलना चाहूँगा मुझे नहीं समझ में आता. सो मैंने तो वट एवर ग्रिट एंड टेम्परामेंट आई डेवलप्ड थ्रू वेरियस टेस्ट सीरीज आई हैव गिवन. ओके. तो अभी इस बार क्या स्ट्रैटेजी रहेगी प्रीलिम्स की? सर अभी तो लग रहा है कि बस एटलीस्ट रिविजन पहले पूरा कर लूँ. अभी तो समझ में नहीं आ रहा है 1 महीने में क्या ही कर लूँगा. बट हाँ, स्ट्रैटेजी वही है, स्टैटिक फोकस रहेगा ज़्यादा. टेम्परामेंट थोड़ा टेस्ट सीरीज के थ्रू डेवलप कर लेंगे. PYQ एनालिसिस आई थिंक इज गोना बी वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट, इफ यू डोंट हैव इनफ नॉलेज ऑफ द एग्जैक्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, तो कई बार ड्यू टू द एनालिसिस ऑफ PYQs यू गेन एन इनसाइट कि कौन सा प्रोबेबल आंसर व्हाट इज द डिमांड एंड राइस. सो वो भी कई बार बिना ना जाने भी आप सही आंसर कर सकते. और दूसरा, कई बार क्वेश्चन करते करते यू कैन एंटिसिपेट कि अच्छा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये बार बार आता रहता है, या दिस एरिया हैज टू बी फोकस्ड मोर. तो यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. सर आपने DTU से इंजीनियरिंग किया है, तो इंजीनियरिंग करके एकदम से एंथ्रोपोलॉजी? सर नहीं ना. Again, this is a caution for everyone who is listening to this and preparing for UPSC. ईगो में लेके ऑप्शनल मत चुनना. शुरू में फिजिक्स लिया था तो शुरू में फिजिक्स लिया था मैंने. आई वाज हाईली ईगोइस्टिक इन नेचर कि भाई जेई में फिजिक्स अच्छा है, UPSC में नहीं होता. इट्स नॉट द सेम एट ऑल. फिजिक्स के साथ मैथ्स भी थियोरेटिकल अच्छी होनी चाहिए. आई शुड हैव एंटिसिपेटेड इट इफ आई वुड हैव डन माय ड्यू डिलिजेंस व्हिच आई डिड नॉट. सो आई जस्ट जंप्ड इनटू ईगोइस्टिक. मैं तो कर लूँगा, मैं नहीं तो कौन करेगा. एंड टू माई ग्रेट डिस्कम्फर्ट आई रियलाइज कि नहीं, तो बाकी कोई करे ना करे तो नहीं कर पाए. So yeah, so I changed my optional in 24. This attempt I switched to anthropology. क्या था ये switch? The moment I think mains 23 ended on 31st September. Okay. या 30 September ऐसे ही कुछ. The moment I ended my physics का paper, I was like either you quit UPSC or change your option. Even in the examination hall itself. एग्जाम में? Exam hall में कि या तो UPSC छोड़ो या optional छोड़ो. तो क्या स्कोर था पिछली बार फिजिक्स में? अरे सर यहाँ कैमरा में कुछ it was very low. मतलब I missed the cut off for mains by over 200 marks. इतना कम था. हाँ, it was disastrous. प्रीलिम्स जितने नंबर थे क्या? हो सकते हैं prelims. One good thing that you have done is कि you were really practical in approach. हाँ. जैसे कि तुमने फिजिक्स लिया and you realize कि भाई मेरा it is not my cup of tea. Yes. So तुरंत तुमने एंथ्रोपी चेंज. Yes.
तो एंथ्रोपोलॉजी चेंज कर ये नहीं लगा कि इसमें बायो कैसे याद करेंगे सर? इसीलिए मैंने बिकॉज सी सम ऑफ माई कॉलेज बैचमेट्स आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज. इंजीनियर्स में ट्रेंड होता है एंथ्रोपोलॉजी लेने का ड्यू टू वेरियस रीजंस व्हिच ऑल ऑफ यू माइट नो. बट आई हैड अ बिग फियर ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम स्कूल डेज. इसीलिए मैंने PCM लिया था और इंजीनियरिंग में आया मैं. तो मुझे लगा कि बायो नहीं होगा. बट व्हेन आई एक्चुअली लुक्ड इनटू एंथ्रोपोलॉजी आफ्टर रियलाइजिंग कि फिजिक्स नहीं होगा, तो आई सॉ कि द बायोलॉजिकल पार्ट इज वेरी स्मॉल और बहुत आसान से हैंडल हो सकता है. बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है. जो टिपिकल बायो हाँ, वो नहीं है, बहुत अप्लाइड फॉर्म का है एंड इट इज़ वेरी गुड, इंटरेस्टिंग है. तो आई वॉज एबल टू मे बी, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वेयर एल्स शुड आई गो. बाकी सारे ऑप्शन मेरे स्कोप में नहीं थे, या तो सिलेबस बड़ा था या उतना स्कोर नहीं कर रहा था. वो छोटा है, अब छोटा है नहीं, बट 5 महीने में हो गए enough for me to get a rank. It has helped you crack this. Yes, it has helped me crack. And it was an enabling force also, क्योंकि एंथ्रो पढ़ने के वो में कुछ चीज़ें डेवलप हुई जो कि मैं JS में अप्लाई कर पाया. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ऐसे आई यूज्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. अच्छे मैं इंस्टेंसेस हिस्टोरिकल एवोल्यूशन से कोट कर पाया. आई थिंक JS 3 में मैंने एंथ्रो का वो यूज़ किया था, कुछ तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का और अर्गोनॉमिक्स वगैरह का कुछ तो कंसेप्ट मैंने एग्जाम्पल में डाला है. एंड इवन ऐसे भी अपने पेपर 1 में सोसाइटी में पेपर 1 तो पूरा GS 1 इज पूरा ट्राइबल इंडिया, क्रॉस कनेक्शन बहुत. तो इट वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर मी. मतलब इन अ वेरी शॉर्ट द रिवॉर्ड आई हैव रिसीव्ड. अभी मुझे मार्क्स नहीं पता एंथ्रो के, बट एटलीस्ट उतने तो कम नहीं होंगे इफ आई हैव रिसीव्ड अ रैंक. फिजिक्स से तो ज्यादा होंगे. फिजिक्स के तो 3 गुना, मेरे तो 4 गुना हो सकते. 4 गुना तो नहीं, बट अबाउट 2.5 टाइम्स. हाँ, एंथ्रो पढ़ के क्या ऐसी इंसाइट मिली है पर्सनल लाइफ के लिए? फॉर एग्जांपल एंथ्रो एक्चुअली इज लाइक अ स्टोरी व्हिच मेक्स अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर. यस. तो क्या ऐसी इंसाइट मिली एंथ्रो पढ़ के? जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई रेड द एंथ्रो फॉर द फर्स्ट टाइम, so it was really intriguing. अच्छा, we have evolved from these animals. अच्छा, these are related to us in this fashion. Yes. Okay, this is something that still has a bearing on our behavior. What kind exactly. of and how to look at other cultures. Exactly. So what kind of learning have you had because so of this? multiple learnings, I would say. Biological anthropology has made me aware of more about how my body function and why it functions as so. Body fat, खाना, nutrition, और ये जो ह्यूमंस का जो जेस्टेशन पीरियड कितना कम क्यों होता है, केयर, आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन, ये सब बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में. बट सबसे ज़्यादा मुझे तो सोसाइटी बेटर समझ में आई है. सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हाउ हैज कल्चर शेप्ड ह्यूमंस एंड वाइस वर्सा. सुपर ऑर्गेनिक क्यों हैं, वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस का हमारे जेनेटिक सिलेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सोशल स्ट्रक्चर्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रोल प्ले करती है, ह्यूमन बीइंग्स और उनके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं. एग्जैक्टली. और इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, वर्णाश्रम, वेरी वेरी इवॉल्व्ड अंडरस्टैंडिंग आती है. और व्हेन आई टॉक टू समवन अबाउट इंडियन सोसाइटी तो एक लगता है कि हाँ, आई नो, आई कैन होल्ड माय ओन. राइट. सबसे फेमस पर्सन ऑन सोशल मीडिया आई थिंक इज युval Noah Harari. अरे definitely Sapiens, Homo Deus and Nexus. I'm currently reading Nexus. And the kind of insights that he gives, it is unparalleled, I think. And sir, on a personal level, I am fond of reading science fiction novels. So science fiction novels are not just about technology. It's about how technology will shape the future of humanity and human society. अब एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज के साथ मुझे वो बेटर कंटेक्स्ट में समझ में आता है. फॉर एग्जाम्पल असीमोव की जो फाउंडेशन सीरीज है, इट सेट thousands of years into the future. Now I read those in school. अब मैं एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ उसको बेटर अप्रिशिएट कर पाता हूँ कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स का क्या हो सकता है इम्पैक्ट, लॉज ऑफ रोबोट जो कंप्यूटर साइंस, राइट? कंप्यूटर साइंस. तो हाँ, अब बहुत कुछ AI का इम्पैक्ट कैसे हमारे हर सोशल स्ट्रेटा पे, सोसाइटल इंटरेक्शंस पे, हाउ इट कैन शेप ह्यूमैनिटी गोइंग फॉरवर्ड. तो I think anthropology is a very holistic subject in that manner. Very good. तो एंथ्रो में there are multiple sections, बहुत सारे sections हैं उसमें. Four parts सबसे difficult लगता है. Yeah, difficult मतलब difficult as an understanding wise not, but जो memory का physical archaeological anthropology sir. It's a common fear for everyone. हाँ, very मतलब मुझे तो even on the day I had to write the paper, I was like I am not able to remember कौन सा skeleton कहाँ डिस्कवर हुआ है, किसने डिस्कवर किया है, उसके dimensions क्या है. तो that is something I work with. Tool types plus Indian archaeology. Yes. कितने सारे निमोनिक्स मैंने बनाया कि क्या इंडियन एंथ्रोपोलॉजी. हाँ, एग्जैक्टली. इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज इवन मोर डिफिकल्ट क्योंकि डिफरेंशिएटर बहुत कम है और इंडिया में बहुत सारे स्टेजेस, वही सब क्या फर्क क्या है, वही तो. और साइज I was talking to Benjo P. Jose. He had ranked 59 and he had 3 marks in anthropology.
तो उससे मैंने पूछा कि भाई व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट यू वुड स्टिल वांट टू प्रिपेयर, सो सर अभी भी आर्कियोलॉजी में डर, so he was still preparing for the archaeology when he got to know that he has got 59 rank, so then of course he did not have to prepare. ये तो IAS So, काफी अच्छा है. ओके दूसरा ये जो नोशन है कि एंथ्रो छोटा सब्जेक्ट है, जैसे बार बार आता रहता है, एंड आई फील इट द पेपर वन इज नॉट दैट स्मॉल, बट पेपर टू रिलेटिवली इज मैनेजेबल बिकॉज इट इज वेरी मच इंटरकनेक्टेड. Yes. विलेज स्टडीज आर रिलेटेड टू कास्ट, Yes. कास्ट इज रिलेटेड टू द इंडियन ओवरऑल इंडियन सोसाइटीज नेचर, फिर उसका जो ट्राइब भी कहीं ना कहीं कास्ट से थोड़ा बहुत अपन समझते हैं, प्लस इट इज एज सम कनेक्शन विद कास्ट ऑल्सो. ट्राइब ऑफ कोर्स इज डिस्टिंक्टिव टॉपिक ऑल टुगेदर, बट बहुत ज़्यादा टॉपिक ही नहीं है. अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो एक हो गया इंडियन आर्कियोलॉजी, दूसरा हो गया द बेसिक वैल्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी, तीसरा विलेज स्टडीज, कास्ट और ट्राइब. आई थिंक ये 4-5 ही टॉपिक. maximum. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर अब इफ एंथ्रोपोलॉजी स्मॉल और नॉट वास्टनेस ऑफ सिलेबस, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होती है, सब्जेक्टिविटी भी है, बट आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और पढ़ने में टाइम का पता नहीं चलता है एंड बहुत जल्दी कवर होते हैं कुछ अच्छी चीज़ें. सो मे बी उसके कारण भी एंड द वे इट फोर्सेस अस टू थिंक, तो और अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो लॉजिकल माइंड अप्लाई कर सकते हैं कई जगह. सो उस सेंस में इट्स वेरी मच कॉन्ग्रुएंट विथ व्हाट वी आर ऑलरेडी थिंकिंग. तो आई फाउंड इट वेरी मच टू माई लाइक. इस बार क्या अलग करना है इस रेगुलेटर में? इस बार अलग ये करना है कि सो केस स्टडीज़ मैंने प्रिपेयर नहीं करे थे पिछले बार, ऑथर्स के नाम मेरे टिप्स में नहीं थे. वैल्यू एडिशन आंसर मैं काफ़ी कर सकता हूँ. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के तो मैं आंसर गलत लिख के आया हूँ इस बार. बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जेनेटिक का एरर्स का एक क्वेश्चन था, उसमें आई हैड टू राइट समथिंग एंड रोट अ सुपर सेट ऑफ इट. ओके. तो अ लॉट ऑफ एरर्स वर मेड इन एंथ्रोपोलॉजी दिस ईयर और डेफिनेटली केस स्टडीज़ का बैंक मेरे को तैयार करना है. वो जनरली स्टैंडर्ड जो केस स्टडीज है वो तैयार ही होनी वो तैयार है, बट हाँ समथिंग अलग, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई हैव नोन कि एंथ्रोपोलॉजी में स्केलिंग काफ़ी मैटर करता है. इफ यू आर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑन द बेल कर्व तो योर मार्क्स स्कोर गोज अप लाइक एनीथिंग. तो आई वांट टू डिफरेंशिएट माई सेल्फ अ बिट सो दैट आई कैन कैपिटलाइज ऑन एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. How much answer writing did you do in anthropology? So frankly speaking, I could not do as much answer writing as I just wished. kept on reading and Yes, understanding yes, because I had about 5 months, holistically speaking, to prepare for anthropology Before prelims. before prelims. और उसके बाद prelims के बाद तो I had a lot of focus on mains also, on GS part. तो anthropology चल रहा था साथ में, but I wanted to do more. I could have done more. Hopefully I'll get a chance again this year अगर prelims फिर से qualify कर पाता है तो. So इस बार आंसर राइटिंग मुझे ज़्यादा करना है, और बट मेन चीज़ है कि मुझे कंटेंट थोड़ा अपना इनरिच करना पड़ेगा. आई थिंक हाँ एक्स्ट्रा कुछ है, अंडरस्टैंडिंग डीपर होनी चाहिए जो मैं रट नहीं पाया था इस बार आर्कियोलॉजिकल, बिकॉज इन पेपर वन the paper was very the question paper was very conventional. So anyone who has a good grasp or a good recall recognition recall जो भी है, they would be able to score very. वहाँ मुझे लगता है I've not done well. वहाँ पे एकदम मतलब on the tips होना. हाँ टिप्स पे होगा तो you can maximize 150 आराम से आ सकता है वहाँ पे. एक क्वेश्चन आई हैव फॉर यू कि जब अपन जनरली जब बच्चे पेपर को देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन का मान लेते हैं लास्ट से पेपर उठाते हैं तो उसमें कई क्वेश्चन होते हैं अनकन्वेंशनल होते हैं जो कि बिल्कुल थोड़े लगता है यार ये कहाँ से आ गया. थोड़ा डू यू स्टिल फील कि जो questions, the majority of the questions are still conventional in majority of the section. Just for example, paper 1 yes तो पूरा conventional. पूरा conventional. पेपर 2 में भी अगर अपन निकालेंगे तो हमें 15 क्वेश्चन तो conventional निकल जाएंगे. 10 मानते हैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, 10-12 आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, लेकिन फिर भी वो conventional क्वेश्चन तो होंगे. तो what is the value of doing the more predictable questions very well and then of course you cannot prepare the unpredictable one. Unpredictable की कोई लिमिट ही नहीं है. नहीं कुछ भी पूछा जा सकता है. नहीं. तो क्या अप्रोच होनी चाहिए इसके? So वही like you said, you cannot prepare for unconventional. कहीं से भी कोई कुछ भी पूछ सकता है, but you have to ensure कि the questions you know you excel. पर जब भी डिस्कशन हो रहा होता है हमें बच्चों को 1-2 सवाल ही दिखता है. तो वो तो गलत बात है. That's not the तो correct. ये बात भूल जाता है कि मेंस में 90% चीजें बार-बार वही आती है. If you because see, if it is unconventional for you, it is unconventional for everyone else. हाँ exactly. तो आपको जो पढ़ रखा है उसमें तो आप एक्सेल करो अपने आप को. एंड अगर बाकी एंड ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई एनी नॉलेज फ्रॉम कन्वेंशनल क्वेश्चंस टू अनकन्वेंशनल क्वेश्चन. तो अगर आपका कन्वेंशनल पार्ट स्ट्रांग है, इफ यू डिफरेंशिएट इवन अ बिट, बिकॉज मेंस इज सब्जेक्टिव, आपने थोड़ा भी अच्छा लिखा बाकियों ने खराब लिखा, यू विल गेट गुड मार्क. And eventually it is your understanding which will matter. Yes, exactly. आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो whatever you write Yes. will make sense to the exam. Exactly. Otherwise आप बिल्कुल रट के ही गए हो तो फिर तो आपका इंसाइट ही नहीं होगा. You are done. थोड़ा भी इधर से उधर आया तो गलती आप करोगे ही करोगे. Yes.
तो फिर इस पे अपन पूछते हैं कि रटना कितना जरूरी, जो रटना है वो तो रटना पड़ेगा, फिजिकल बट एंथ्रोपोलॉजी. हाउ टू ईज दिस आइडिया ऑफ लर्निंग सो मेनी थिंग्स? So the approach I adopted was to learn anthropology as a story. एज अ स्टोरी, एग्जैक्टली. When I learned of it as a story, a lot of things stayed with me. और facts तो revision just exactly example. जैसे जितना बार रिपीट करेंगे हाँ, उतना याद वो होगा. tips तो खैर होते हो. जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना याद हो जाएगा. But the basic gist should stay with you. मतलब you should be able to carry a conversation. Yes. प्राइमेट है तो हाँ, प्राइमेट में कौन से yes, taxonomy yes. क्या है? यस, फॉसिल कैसे रिलेट हो सकता है उससे? मतलब basically the target should be I should be able to hold a conversation with a faculty like you. Exactly. ये नहीं कि चुप ही हो जाऊँ मैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. तो वो रटने के साथ वो प्रॉब्लम है, either you know or you don't. So what is the role that is played by, there are so many standard videos I think that are made by the Western anthropologists. जैसे if you go to the YouTube you'll find कि बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग सोर्सेज है. हाँ. जो कि आपको जो स्टोरी ऑफ द एवोल्यूशन जो भी है, फॉर एग्जांपल इरेक्टस का एवोल्यूशन, Neanderthal का evolution. या हबिलीज, हाउ व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन व्हिच हबिलीज वाज लिविंग, या ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स किस एनवायरनमेंट में इवॉल्व हो रहे थे, उस पार्ट को वो काफी अच्छे से दे एक्सप्लेन इट एंड सिंप्लीफाई इट. डिड यू मेक यूज ऑफ दोस? If you are able to make good use of it, but हाँ, देख के भूल मत जाओ, थोड़े notes बना लो. That should be for your understanding, to you just simplify it. Yes. It will be better if you have read it 2-3 times before and then you watch a video. Otherwise, दिमाग though, में- it's just like another हाँ, story. वही वो तो आप Another Document. 100 movies आप 100 documentary देखते हो and it's not really relevant. नहीं, वो तो there you go. सही. How important is book reading in anthropology? Generally, people have this tendency of picking up notes directly. कि मैं टॉपर के नोट्स उठा लेता हूँ, या मैं काम करता हूँ, मैं ये सीधे क्वेश्चन आंसर याद कर लेता हूँ. तो विदाउट हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, अगर आप डायरेक्टली इन पे जंप करोगे तो क्या फायदा क्या नुकसान होगा? Sir, honestly speaking, मैं तो एक I'm a complete amateur at anthropology. मैं इस पे क्या ही किसी को advice दूँ, but in my experience, the kind of paper which UPSC is putting right now, if you rely completely on already refined notes, toppers के वो Which are अपने pretty objective in yes, nature. हाँ, It does not tell you the story. exactly. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी वैसे ही हो, Understanding impact. तो फिर थोड़ा भी lateral thinking नहीं कर पाएंगे आप, which is developed when you read actual standard books. तो क्योंकि through you I want to reach to that audience, जो कि there are many people who have been preparing on their own and they tend to directly jump onto the topper's notes. I They am fail not- to realize कि topper has studied things Yes. on their own and then this is the refined thing that has they come have out. processed everything. This is the end product. उनके दिमाग में सारी अंडरस्टैंडिंग है एंड व्हाट इज रिटन इन देयर नोट्स इज अ जो उनको उस पूरे स्टोरी को दिमाग में वापस चला देता है. आपके दिमाग में वो स्टोरी नहीं चलने वाली. नहीं चलती, सही बात है. तो आई हैव नॉट रेड एनी टॉपर नोट्स. बहुत फ्रूटफुल होते होंगे, उन्हीं के लिए होते हैं जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट का ग्रास्प. तो सबसे बेस्ट तो होते हैं उसको टॉपर के लिए. हाँ एग्जैक्ट जिसने बनाया. वही है, उसको फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, आप अपना देख लो. सर एज अब थोड़ा आई वांट टू gain certain insights from you as I'm appearing for the exam again. If hopefully I'll crack prelims. So if I crack prelims again now, I have to take my anthropology score beyond 300. So being such an experienced faculty who has seen multiple hundreds of toppers go through this journey, what do you think should form the basics of marks improvement for someone who has a basic grasp of the subject? How to take it beyond the conventional to the exceptional? आप कुछ पॉइंट्स उसमें अगर मुझे दे दो. देखो क्या है कि जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग, So, which I think you have cracked this examination this year, और मुझे लगता है कि that you have already developed. So. कि you know the story part of it. Second step जो होता है प्रिपरेशन का, I think that is becoming more exam centric. so तो first step that has to be followed is a real thorough analysis of the previous equation. Previous equation analyze करना है, उसमें से ये analyze करना है कि कौन कौन सी themes are being repeated time and again. जैसे फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं बाइपेडलिज्म पे बार बार सवाल आता है, या कल्चरल रिलेटिविज्म पर घूमे हुए बार बार सवाल आता है. ठीक है, थ्योरीज में अपने पास स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कई सारे लगातार घूम जाते हैं, या फिर कितने तरह के डिसेंट्स होते हैं उस पर क्वेश्चन आप. तो अगर वो हमारा रेडीली प्रिपेयर्ड नहीं है तो देन वी आर एट लॉस. right. मतलब वी आइडेंटिफाई कि इस पे 5 क्वेश्चन आए, तो एटलीस्ट वी हैव अ स्टैंडर्ड राइटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन आवर ओन लैंग्वेज, जो कि हम एग्जाम में लिखने वाले हैं. So, ऐसा नहीं कि हम लोग ने 4 जगह से पढ़ लिया है और उसके बाद में हम जब व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस इट इन द एग्जामिनेशन याद ही नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट आई थिंक द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डू इज एज टू स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन. नंबर 1, so वो कर लिया. उसके बाद में उनको रेप्लिकेट करना है टेस्ट सीरीज के अंदर, उन्हीं को रेप्लिकेट करना है, क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग दोस प्रीवियस क्वेश्चंस, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ स्टैंडर्ड राइट अप बेस्ड ऑन अ थीम, so if you do that thing, this basically helps you in doing what? It helps you in making those questions really predictable. जैसे मान लो आपने टेस्ट दिया, आप टेस्ट देने गए किसी टेस्ट सीरीज में, तो मान लेते हैं कि, और या फिर जब यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, मान लेते हैं कि जब कल्चर रिलेटिविज्म का क्वेश्चन आया, आपको उसके बारे में सोचना ही ना पड़े एग्जाम. exact.
आपको सब कुछ आपके हाथ को याद हो, दिमाग को नहीं, मसल में कि आप हाथ से लिख दिया आपने सब कुछ, है किसी उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। और जब आपने ये इंसाइट्स कर लिया होंगी, दैट इज द टाइम व्हेन आपके पास जो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन जो आया है, यू वुड बी एबल टू स्पेंड सम टाइम ऑन दैट। राइट। तो पॉइंट ये है कि जो आपको पता है कि ये तो आ ही सकता है, हाँ. ये जब आया ही है पहले, हाँ. तो क्यों ना मैं इसको रेडीली प्रिपेयर कर लूं Right. एंड सेव टाइम ऑन दोज क्वेश्चन जहां थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड व्हाइल राइटिंग दीज आंसर्स, उसी टाइम पे आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है मेरे लिखने में, Right. जो नॉलेज मेरी इसमें कुछ है, तो उसमें यू कैन ऐड समथिंग Right. रादर देन रैंडमली एडिंग कंटेंट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, कि मैं 4 केस स्टडी ढूंढ लेता हूँ या 5 एग्जांपल ढूंढ लेता हूँ, वही मैं बाई पढ़ लेता हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है अच्छा ये केस स्टडी और हेल्प करेगी मुझे, राइट। दैट इज द अप्रोच व्हिच हेल्प्स एवरीबॉडी, प्लस revision through pre-YQs, I think that is the best way somebody can improve the score. Definitely, sir. And I think अगर इस sense में you will be able to help me prepare a certain list of topics जो कि बार बार repeat हो रहे हैं and which are very high risk, मतलब cost benefit जिनका बहुत अच्छा low है, benefit ज़्यादा है, cost कम, तो उसमें that will be a big help. Generally वो टेस्ट सीरीज अपन को हेल्प करती है जो कि थोड़ी सिंपल हो, Right. बहुत उससे आप लिखते भी ज्यादा हो। हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टेस्ट सीरीज में तो लगता है ये तो कोई नहीं रह जब अगर डिफिकल्ट टेस्ट दे दिया तो आप 2 रिवाइज देखने के बाद आप डिस्करेज हो जाते हो, मुझे तो आता ही नहीं, छोड़ देता हूं। राइट। तो द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन, जितनी सिंपल आपकी प्रिपरेशन होगी, हाँ, उतना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम के अंदर। And so for people like me who have been through the process once, कुछ करा है, I've reached a certain level, so do you think should I stick to FLTs only? Yeah, should I go for sectionals also? I think this, for example, you yourself were saying कि archaeology सर थोड़ा सा मुझे लगता है मिसिंग है। जी सर। तो इफ आर्कियोलॉजी यू फील देयर इज समथिंग मिसिंग, Sir. तो पहले उसका बेस मटेरियल यू जस्ट फाइनलाइज, मुझे ये पढ़ना है जी। कि ये सोर्स हो गया मेरा, राइट। ये सोर्स हो गया, उसके बाद आर्कियोलॉजी प्रॉब्लम में याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो याद रखने के लिए वन थिंग इज यू नीड टू नो द स्टोरी, राइट। कि भाई आर्कियोलॉजी लोअर पैलेओलिथिक है, लोअर पैलेओलिथिक में भाई 2 आपके फॉसिल्स रिलेट करते हैं, हमीज हो गया, इरेक्टस हो गया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, कौन सा टूल बन रहा है, तो भाई चॉपर टूल हो गया, हैंड एक्स हो गया, फिर निएंडरथल आ गया, मॉस्टेरियन, तो ये सीक्वेंशियल यू शुड नो द स्टोरी, राइट सर। एंड दैट कैन देन बी रेप्लिकेटेड इन द इंडियन पार्ट आल्सो। ओके। तो आपका पूरा जैसे लोअर पैलेओलिथिक है, तो इंडिया में कौन कौन से सब पार्ट है, वो आपका रेडीली आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, एंड थ्रू अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क कि साइट्स काम नहीं, who was the person who excavated those sites, what were the findings, how it relate, what was the paleo environment in that time period, how can we relate it to the European lower Paleolithic stage, and once you've done this, तो आपका काम वैसे ही हो गया, आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया एंड डन, राइट राइट और रॉन्ग। तो आई थिंक फॉर यू you have to identify those areas which you feel you still need some improvement. राइट। One, secondly, जो areas में आप already confident हो, उनको just freeze them. Don't try to overdoing them. ओके। So we have this tendency of overdoing things which we already know, or when we are comfortable with. राइट सर। तो point is to just be confident in those areas, उनको finalize करके, और इन areas में I think there should be a better focus which will I think help you in this exam. And I hope I'll have your guidance उस time. Absolutely, I'm available Yes, sir. all the time, no problem in that. वही है। And apart from that, I think anthropology is a good subject. और नहीं, definitely it is the only subject in which somebody can be confident of getting trained. I think. yes, go for standard materials as far as possible. Yes. And find good mentors. Sir है always. तो yeah, I think that will help you, and don't overdo things. Limited पढ़ाई करो यार। क्योंकि एक बच्चों के दिमाग में घुस गया है, क्योंकि क्या होता है कि प्रीलिम्स और मेंस दो बहुत ही डिफरेंट एग्जाम है। प्रीलिम्स के अंदर आप देखोगे डिफरेंट, मतलब है तो सब्जेक्ट मैटर सेम है डिफरेंट, बट डिफरेंट क्यों है? प्रीलिम्स के अंदर जनरली डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर अपन मेंस देखें तो मेंस में फेयरली प्रेडिक्टेबल होता है, एकदम प्रेडिक्टेबल मेंस फेयरली प्रेडिक्टेबल। ऑलमोस्ट जीएस ले लो, आप कुछ भी ले लो, 16-17 क्वेश्चंस प्रेडिक्टेड होते हैं। एग्जैक्टली दैट इज द थिंग। हाँ। और लोगों को क्या लगता है कि यार यूपीएससी का एग्जाम है तो कोई इजी क्वेश्चन क्यों पूछेगा, तो मुझे सबसे डिफिकल्ट तैयार करके जाना है, एंड they needlessly tend to get into detail of so many questions. I think the सबसे बड़ी fallacy about UPSC ना, I think UPSC is one exam where it gets a bit easier as you go ahead. Selection rate improve करता है आपका। सोचिए ना, in prelims you have to be in the top 12,000 out of 10 lakh. मेंस में आपको टॉप 2600 में रहना है आउट ऑफ 12,000, और फाइनली आप 33% सिलेक्शन रेट पे पहुंचते हो। Exactly. इफ यू जस्ट परसिवियर और आगे बढ़ते रहोगे तो चांसेस तो उसको लगे रहना बहुत जरूरी है। There can be ups and downs, but I think sticking with the exam, sticking with the process is more important. प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए, और इफ यू आर मेकिंग डेली प्रोग्रेसेस थोड़ा थोड़ा तो इट्स गुड, और रिजल्ट्स दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते। हाँ, इम्प्रूवमेंट फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल। Either be with good people or be alone. Don't be with bad people. Peer group, if the peer group is not right, I think that has a huge impact. Yes. Also, many good aspirants also, Yes. they miss out on selection. Definitely. Really good insights. So And I think, your I'm really
So I'm really motivated by talking to you. So your guidance obviously हम लोग सबको help करेगा, मुझे help करे personally. I hope prelims निकले मेरा best is Definitely you will do good in this exam. So and you've already done well in the exam. So many congratulations. Thank you so much. Really Thank nice you. talking to you. The pleasure was mine. Thank you so much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।